Good evening, everyone. I'm your host, Ruchita. Welcome to today's session of NutriLife 360. Today's topic, guys, is very, very important. It is our gut health. Did you know gut is also called our second brain? And what we eat also impacts our gut. The quality of sleep is an indication of how our gut health is. We're going to learn about all of this and much, much more because, as the invite says, gut sahi to sab sahi. To start the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's welcome him onto this virtual stage and listen to him very, very carefully. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Friday session. I just hope that you had an early dinner and done some exercise because doing that really ensures that your gut health, will be in a good state. Most problems which were initially even thought about that originated from the brain, new evidence is emerging that problems like Alzheimer's, dementia, Parkinson, they all basically originated from the gut. So it is very important to understand that why you need to focus, on your gut health and ensure that you maintain the right balance of the gut microbiome in your system, ensuring that there is 85% good bacteria and 15% bad bacteria. Unfortunately, with the kind of food that we are eating today, the genetically modified food and the processed food and the refined food and the super refined food, plastic containers, plastic, getting into our food. So all this has impacted our produce, and that produce is dramatically impacting gut health. I really encourage everybody on the platform, I really urge everybody, to look after your health. And basically the health starts from this gut health. If the gut health is all right, you will stay away from 90% of the problems. Recently, I've, had a very bad incident. A very dear friend of mine needed to go in for medical treatment. And the entire good medical facilities in this country are so overloaded that you won't believe that even under emergency, we could not get a bed. There were 18 people in the queue in emergency, and there were 50 people waiting in a hospital which has, the size of 245 beds with 400 doctors working over there. So the entire health system is massively overloaded. And by looking after, it struck me that by looking after your own gut health, you will not be only doing a favor to yourself, but you'll be actually doing a favor to the country, because our country desperately needs, our job is not to replace doctors. Our job is to ensure that you don't need to go to a doctor. And doing that will not only help you and your friends and family, but you're doing a big service to the nation, because we need to stay away from overloading this entire medical system. There's a lot of other medical system available, but that's poor quality medical system. Any good quality medical system, even after paying huge amounts of money, it's massively overloaded. So it's my sincere request to everybody that take care of your health, because health is the only thing that is in your hands. Once you lose health, you are in big trouble. So listen to Manoj very carefully. He's, he came onto this community with reasonably poor health, but after he joined the community, he made an amazing transformation.
And he really understood what gut health is all about, and he changed a couple of food habits, changed the timing of the food habits, and today he's having a lot better health. So listen to Manoj very carefully, because what you have to say will have a significant impact on your overall health. Thank you. Over to you, Manoj. थैंक यू फॉर यू सेड रीजनेबली पुअर हेल्थ. आई थिंक आज की डेट में अगर होता तो इट वाज, आई थिंक, आई कैन नॉट इमेजिन किस तरह का हेल्थ होता. इट वुड हैव नॉट बीन रीजनेबल, इट वुड हैव बीन वेरी वर्स. ओके, सो आज की हम शुरुआत करते हैं. और एक मिनट. ओके, स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन दिख रही है इसको? Yes, हाँ जी. ओके, थैंक यू. तो आज का टॉपिक है गट हेल्थ एंड गट रिसेट. तो गट, मुझे तकरीबन 2 साल पहले तक ये पता नहीं था कि गट का एक्चुअल मतलब क्या होता है. आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों को गट का एक्चुअल मतलब पता होगा, है ना. गट, नॉर्मली अगर किसी को पूछा जाए गट मतलब क्या, तो बेसिकली कहते हैं पेट, है ना. वहीं पर वो ख़त्म कर देते हैं. एट द मोस्ट बोलते हैं इंटेस्टाइन वगैरह, दैट्स इट. उसका आगे वो जाते ही नहीं है, उसका ना उसके पहले जाते हैं ना उसके आगे जाते हैं. गट का रियल मतलब होता है आपके मुंह से लेके आपके एनस तक का इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां जहां से आपका खाना पास होता है ना. शुरुआत मुंह से होती है और आप उसको एक्सक्रीट कर देते हो थ्रू एनस. तो मुंह से लेके पूरा खाने की नली, लीवर, स्टमक, पैनक्रिया, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट गट में आते हैं. तो गट इज बेसिकली अ डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा सिस्टम है ये. ओके, मुंह से लेके आखिरी तक का. अगर अगर हम बात करते हैं गट हेल्थ की, तो क्यों करते हैं? जैसे कि रुचिता ने शुरू में ही कहा, फारूक ने जैसे कहा कि गट इज अ सेकंड ब्रेन. सॉरी, रुचिता ने कहा था गट इज अ सेकंड ब्रेन. आपने कईयों को देखा होगा, जब वो टेंशन में आते हैं, कईयों के पेट में मरोड़ आना चालू होता है. कईयों को आपने देखा होगा कि अगर पेट अपसेट है तो उस दिन उनका काम करने में मूड नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं रहता उनका. जबकि कंसंट्रेशन काम तो दिमाग का है, ब्रेन का है. पेट में गड़बड़ होने से ऐसा क्या होता है? ऑब्वियसली होता है बिकॉज इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से है और फिर ब्रेन का कनेक्शन आपके बॉडी से है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका गट अगर खराब है, आपका शरीर खराब होगा और आपका दिन खराब हो जाएगा पूरा. तो इसलिए हम गट हेल्थ की बात करते हैं. और गट रिसेट की बात क्यों? गट रिसेट की बात इसलिए क्योंकि गट है तो फिर खराब भी हो सकता होगा. कोई चीज़ है, काम करती है, तो खराब होने के चांसेस हैं, है ना. कुछ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं. तो उसको फिर ठीक करने के लिए गट रिसेट की बात होती है. तो बेसिकली गट का काम क्या होता है? गट का काम बेसिकली आपका खाना खाना है. खाने के फूड को, जो आपने खाना खाया उसको तोड़ना है और उसको सिंपलर न्यूट्रिएंट में बना के एब्जॉर्ब करना है. उसको फिर बॉडी से निकालना है. गट के अंदर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई जीवाणु होते हैं. और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो पिक्चर में, वैसे वैसे गट के बैक्टीरियाज की क्वांटिटी बढ़ती रहती है. ये तकरीबन 10⁻17 तक जा सकता है. मतलब 10 के बाद 17 जीरो पर ग्राम ऑफ वेट ऑफ दैट माइक्रोबायोटा की. जो एक ग्राम का आप वजन करेंगे तो उसके अंदर इतने सारे माइक्रोबायोटा होंगे. तो गट का काम बेसिकली ये है कि आपके उन माइक्रोबायोट्स का बैलेंस बनाए रखना. ना, बैलेंस दो चीज से होता है, एक अच्छा और बुरा, और दूसरा होता है कितने अलग अलग जाति के, प्रजाति के, स्पीसीज आपके पास हैं माइक्रोबायोम्स के. गट का काम हार्मोन प्रोडक्शन भी है. हार्मोन प्रोडक्शन ग्लैंड करते हैं जो आपके बॉडी को रेगुलेट करते हैं और काम करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं. तो गट माइक्रोबायोटा है क्या? जो जीवाणुओं की बात कर रहे हैं वो है क्या?
कई कई माइक्रोबायोटा हमारे शरीर में होते हैं, इंक्लूडिंग हमारे स्किन, बाल में भी होंगे, हाथों में भी होंगे, लेकिन 10 गुना ज़्यादा हमारे गट में होते हैं। पूरे शरीर में जितना भी होगा उसका 10 गुना ज़्यादा हमारे गट में होगा। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 90% टू 95% ऑफ टोटल माइक्रोब जो हमारे शरीर में है उसका 90-95% हमारे गट में है। 100 ट्रिलियन माइक्रोबायोट्स हो सकते हैं और 5,000 से ज़्यादा अलग अलग जातियाँ होंगी उनकी। और इन सारे माइक्रोबायोट्स का अगर आप वजन करोगे तो तकरीबन 2 किलो इन माइक्रोबायोटा का वजन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके शरीर का वजन जितना भी हो, 2 किलोग्राम आपके शरीर में जीवाणु है। वो जीवाणु अगर अच्छे हैं तो आपके लिए फायदे की बात है और बुरे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। इन माइक्रोबायोटा का बेसिकली काम क्या है? तो 5 मेन काम है इनके। ये आपके डाइजेशन में मदद करते हैं और डाइजेशन मदद करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सही तरह से काम करे इसलिए उसमें हेल्प करते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे जो इनर वॉल होती है, अंदर के तरफ की वॉल, समझो ये आपकी पाइप है तो पाइप के अंदर का है ना, ये आपको बार बार इस प्रेजेंटेशन में सुनने मिलेगा, बैरियर बैरियर बैरियर। तो बैरियर बेसिकली क्या है, आप उसको इस तरह से देखिए कि अगर ये पाइप का होल है, या पे आपकी ये नली है, कोई खाने की नली हो सकती है, आंत हो सकती है, तो उसके जो अंदर की लेयर होती है, कोई भी पाइप का या नली का जो अंदर का लेयर है उसको बोलते हैं बैरियर। वो बेसिकली काम क्या करता है, अगर वो खराब रहा तो आप अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, और अगर वो बैरियर अच्छा है तो टॉक्सिन को वहाँ चिपकने नहीं देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। अदरवाइज टॉक्सिन वहीं रह के और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो रहा है तो आपका इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। और अगर आपको अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो रहा है माइक्रोबायोटा का, तो क्या करते हैं ये माइक्रोबायोम्स डाइजेस्ट करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड आपके इंटेस्टाइन को एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं। तो इंटेस्टाइन को अच्छी तरह से काम करने के लिए भी ये काम करते हैं, मदद करते हैं। ओके, तो गट माइक्रोबायोम 2 टाइप के होते हैं, एक बैक्टीरियोइड्स और दूसरा फर्मिक्यूटिस। बैक्टीरियोइड जो ग्रीन कलर में लिखा है, फर्मिक्यूटिस जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा, शायद ऑरेंज या येलो कलर में दिख रहा होगा। तो बैक्टीरियोइड्स ग्रीन कलर है, बहुत अच्छा है, हेल्दी गट के लिए इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही ज़्यादा होने चाहिए। और फर्मिक्यूटिस जो कि बैड बैक्टीरिया हैं होंगे आपके शरीर में, लेकिन जितने कम रहें उतने अच्छा। जितने अच्छे बैक्टीरिया रहेंगे उतने आपके गट के लिए हेल्दी है, और हेल्दी गट के लिए माना जाता है कि बैक्टीरियोइड्स जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका ज़्यादा होना ज़रूरी है और बुरे बैक्टीरिया कम होने चाहिए। लेकिन अगर आपका गट अगर हेल्दी नहीं है तो उसका चांस ये है कि आपके बॉडी के अंदर जो बैड बैक्टीरिया हैं, फर्मिक्यूटिस जो है वो ज़्यादा है और बैक्टीरियोइड जो है वो कम है। ओके, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है, आपको मोटापा भी हो सकता है। तो हेल्दी गट के फ़ायदे क्या हैं? ये आपके स्किन के लिए बढ़िया है, ये आपके इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, ये आपके जॉइंट हेल्थ और ब्रेन के लिए अच्छा है, ये आपके वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, ये आपका नींद, स्ट्रेस और मूड के लिए बहुत अच्छा है। और हेल्दी गट आपका कब कहा जाएगा, जब आपके पास टोटल जो बैक्टीरिया हैं उसमें से 85% बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया हों और 15% बैक्टीरिया के आसपास ही या उससे कम बैड बैक्टीरिया हों। अगर ये कंडीशन है तो उसको हेल्दी गट कहा जाता है, और हेल्दी गट के फ़ायदे ये आपको हमने बता दिए। तो अभी हेल्दी गट और अनहेल्दी गट में डिफरेंस क्या है? आप देखिए, अभी लेफ्ट साइड में ऑरेंज कलर में है जो अनहेल्दी गट है, और ग्रीन का ब्लू कलर जो है वो राइट साइड में वो हेल्दी गट है। अनहेल्दी गट में क्या होगा, आपका फूड सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, है ना। कुछ चीज़ खा लिया आपको एलर्जी होगी, है ना। ज़्यादा तेल खा लिया एसिडिटी हो गई, स्पाइसी खा लिया एसिडिटी हो गई, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ब्लोटिंग हो सकता है खाने के बाद, आपकी स्टूल पास सही से नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब बार बार जाना शायद आपको पड़े, आपका उसका शेप और साइज़ डिफरेंट हो सकता है, जो कि अनहेल्दी गट की निशानी है। एक्सेस गैस हो सकता है आपके।
आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा चिड़चिड़ापन आएगा खाना देख के आपको शायद। ओके, आपके स्किन हेल्दी नहीं रहेगी, कुछ बीमारियां हो सकती हैं स्किन की आपको शायद, उसकी वजह से आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। ऑब्वियसली जब आपका पेट ऑर्डर है, कहाँ से नींद आएगी आपको? ओके, हमेशा आपको थकावट महसूस होगी, और जब आपको थकावट महसूस होगी, नींद अच्छी नहीं रहेगी, तो मेंटल हेल्थ कहाँ से ठीक रहेगा? बिकॉज आप अच्छी तरह से सोच नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, और इसके वजह से आपका फिर इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका कमज़ोर हो सकता है। इसके विपरीत, इसके अगेंस्ट अगर आप देखा जाएगा, हेल्दी गट क्या है? आपका ज़्यादातर खाना आपको टॉलरेट कर लेगा, अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा, ब्लोटिंग नाम की चीज़ ही नहीं होगी आपको, मतलब ये प्रॉब्लम कभी नहीं दिखेगी आपको। ओके, आपका जो स्टूल होगा सही होगा, दिन में आप एक बार जाओगे, अच्छे से जाओगे, पेट साफ कर दोगे, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना के बराबर होगी। आप हमेशा आपको खाना आप खुशी खुशी खाओगे, आपको खाना एनर्जी देता रहेगा, आपकी स्किन आपको ग्लोइंग स्किन दिखेगी, आपको डल स्किन नहीं दिखेगी, नींद अच्छी आएगी आपको, डिप्रेशन में नहीं रहोगे, एंग्जाइटी नहीं होगा आपको, और क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो फिर आपको बीमारियों से भी आप दूर रहोगे। तो ये हेल्दी गट और अनहेल्दी गट का डिफरेंस है। तो किस तरह से हमारा गट अनहेल्दी हो सकता है? ये सारी चीज़ें हैं जो इसके लिए कल्प्रिट हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो इनके गुनहगार हैं, है ना? अल्कोहल, शराब, दारू, रिफाइंड शुगर, कैफीन, ऑयल और सैचुरेटेड फैट, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी, मीट, पुअर स्लीप एंड लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ओके, अनहेल्दी गट होने के कारण, है ना, ये चीज़ें हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी आदतें हैं जिससे आपके गट को अच्छे रखने में मदद मिलती है? तो हेल्दी फूड प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, नींद वगैरह, और सप्लीमेंटेशन, ये चीज़ें अगर आपने बैलेंस बना दिए आपके लाइफ में, तो आपका गट हेल्दी रहेगा। ओके, तो हेल्दी फूड प्रैक्टिस बेसिकली न्यूट्रिशियस फूड हम कहते हैं। हेल्दी फूड को आप आलू पराठा भी को भी हेल्दी फूड कह सकते हो कंपेयर टू वड़ा पाव या पिज़्ज़ा, लेकिन माइट नॉट बी सो न्यूट्रिशियस। तो न्यूट्रिशन, खाना मतलब न्यूट्रिशन, ये ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। एक्सरसाइज, नींद और सप्लीमेंटेशन, इसके बारे में हम आगे देखेंगे और ज़्यादा। तो ये हो गया आपका हेल्दी गट और अनहेल्दी गट का डिफरेंस। अब सपोज कि मान लीजिए कि गट में कुछ गड़बड़ी है ना, तो उसको रीसेट करना क्या है? तो रीसेट करना बेसिकली ये है, अनहेल्दी गट को ही आप रीसेट करोगे। तो अनहेल्दी गट मतलब ये कि आपके गट में अनहेल्दी बैक्टीरिया ज़्यादा है और हेल्दी बैक्टीरिया कम है। तो जब हेल्दी बैक्टीरिया कम है और अनहेल्दी ज़्यादा है, तो आपको प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है। आपने क्या करना है, आपने कोई एक ऐसा सिस्टम अप्लाई करना है आपके गट के लिए जिसमें आपके हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ जाए। ओके, तो इसको करने के लिए हम नॉर्मली कहते हैं 10 दिन का टाइम लगता है। क्यों कहा जाता है 10 दिन का टाइम? क्योंकि जो भी आपने खाना खाया है, उस खाने के जो भी पार्ट्स हैं, वो शरीर के अंदर कहीं ना कहीं रह जाते हैं, जिनको निकलने के लिए 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। ओके, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए वो टाइम लग जाएगा। ओके, प्लस आप जो अच्छी चीज़ें खा रहे हो गट को हेल्दी बनाने के लिए, उसको कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा। तो इसीलिए गट रिसेट का टाइम नॉर्मली 10 दिन माना जाता है। अब जब आप गट रिसेट प्रोग्राम में जाते हो, तो उसमें कई चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी होंगी, कई चीज़ें हैं जो आपको अच्छी आदतें लेनी होंगी। उसके वजह से, क्योंकि आपकी जो बॉडी की हैबिट है वो आप चेंज कर रहे हो, तो कुछ आपको सिम्टम्स दिखेंगे जो आपको अनईजी फील करा सकते हैं, लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है, ये नॉर्मल है। ओके, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपको लगेगा यार और ज़्यादा गड़बड़ा गया है ना, बट डोंट वरी। लॉन्ग जंप लेने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना ही पड़ता है ना, और फिर आप तेज से दौड़ के फिर आप लॉन्ग जंप लेते हो, तो इसे टेंशन मत लीजिए। आपको प्रोसेस फूड जो हम खाने को ना कहेंगे, जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और वो अब नहीं मिलेगा, तो आपकी बॉडी बोलेगी अरे ये तो गड़बड़ हो गया, बट नॉट टू वरी, कुछ दिन की बात है,
उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम खाने को चेंज कर दिए हैं तो आपको शायद लगेगा कि बॉडी में शायद उतनी एनर्जी, उतनी ताकत नहीं है, बट डोंट वरी, अगेन ये भी कुछ दिन का ही फिनोमेना है, बॉडी अपने आप इसको एडजस्ट कर लेगी। और बॉडी को ये सब एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और जब जब जैसे जैसे बैड बैक्टीरिया खड़े हो अच्छे हो ज़्यादा हो जाएंगे, तब तक ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। కనపడ్డాడు గౌరవ ముఖ్య అతిథి Ruchita, అన్నాడు. can you mute them, please? Manoj, 1 second, I'm muting all. One Yeah. second, yeah. I'll just mute all. You can switch. Oh. Go ahead, Manoj. Yeah. Okay. ओके, तो ये 10 दिन का प्रोग्राम है, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ये छोटी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवर द टाइम कवर हो जाएंगी। तो गट रिसेट के कंपोनेंट क्या है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, कुछ चीज़ें समझनी है। आपको अपने पेट को सुनना है, मत सुनना है मतलब ध्यान देना है क्या कह रहा है ना। आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन डोंट वरी, ये चीज़ आप प्रोग्राम में रहिए, बने रहिए, तो आपको पता चलते रहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। ओके, जो आपके गट को प्रॉब्लम करती है ना, कुछ लोगों को जैसे होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ खाली उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है पेट में, है ना, उन चीज़ों को आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें गड़बड़ कर रही हैं, आप उनको आस्ते आस्ते निकालने लग जाइए लाइफ के अंदर से, लाइफ से। ओके, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लीजिए, मेडिटेशन का कोई सिस्टम ढूंढ लीजिए, है ना। कुछ आदतें हैं जो आपको चेंज करनी होगी, जैसे कि खाने को अच्छे से खाना, पानी ज़्यादा पीना, पानी को घूंट घूंट करके पीना, मतलब आस्ते आस्ते पीना, एक साथ गटक नहीं जाना एक साथ सब पूरी बॉटल, है ना। रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सारी कुछ आदतें हैं जो आपको आस्ते आस्ते आपको इनकलकेट करनी होगी। आपको सर्काडियन रिदम नाम की कोई चीज़ है जिसे समझना होगा और फिर उसे अपनी आदत में डालना होगा। सर्काडियन रिदम बेसिकली ये बताता है कि नेचर के साथ आपकी बॉडी किस तरह से अलाइंड है, और अगर हम उसको, उस अलाइननेस को अगर ब्रेक करते हैं तो तकलीफ़ें आती हैं। तो आपको समझना होगा सर्काडियन रिदम क्या है और किस तरह से हम अपनी बॉडी को या अपने आप को नेचर से अलाइन रखें। नींद आपको देखनी पड़ेगी कि किस तरह से आप अच्छी तरह से आपकी नींद पूरी करें और हेल्दी रहें। 4 आर हैं गट हेल्थ के लिए। 4 आर मतलब रिमूव, रिप्लेस, कुछ चीज़ें आपको निकालनी है, उसकी जगह पे रिप्लेस करनी है, कुछ रीबैलेंस करना है और रीसेट करना है। निकालना क्या है आपको, आपकी लाइफ से निकालना है आपको कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट, इन चीज़ों को निकाल दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सही है ही नहीं वो, और ये हमारी लाइफ में थी ही नहीं, ये हमने ज़बरदस्ती डाली गई है कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से इनको डाला गया है हमारे उसमें। कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मतलब ये, जैसे कि गेहूं से अगर आपने फाइबर निकाल लिया तो मैदा बन गया, तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है वो। और शक्कर, है ना, रादर देन गुड़, तो शक्कर जो है वो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बेसिकली वो है जिसके अंदर फाइबर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फाइबर नहीं, और सिर्फ कार्ब्स और कार्ब्स ही और कुछ नहीं, दैट इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। तो आपको इससे रिप्लेस किससे करना है, तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को आपने रिप्लेस करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, हेल्दी फैट्स और हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन से। अभी आपने देखा होगा पिछले स्लाइड में कि गट, अनहेल्दी गट करने के लिए नॉन वेज भी कल्प्रिट है ना, लेकिन नॉन वेज प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो फिर उसके पे आप क्या खाओगे, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को आप अपने बॉडी, अपने आदतों में डालोगे, बुरी चीज़ों को निकाल के। रीबैलेंस क्या करना है आपको, रीबैलेंस करना है आपको गट माइक्रोबायोम, ओके, मतलब अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने हैं, बुरे बैक्टीरिया कम करने हैं, और अच्छे बैक्टीरिया की जो आपकी जातियां हैं, जो 5 शेयर हमने बोले थे डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनको इंक्रीज करना है ना। किससे होगा, फाइबर से होगा, प्रीबायोटिक से होगा। इन चीज़ों को, जो जिन खाने में ये चीज़ें होती हैं ज़्यादा, उनको खाना है आपको ज़्यादा है। आपने अपने बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट करना है, किससे करना है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन से, हाई क्वालिटी।
हाई क्वालिटी मतलब वो क्वालिटी जिसके अंदर ऐसा क्वालिटी प्रोटीन जो आपने जितना खाया उतना अपने बॉडी को लग जाए। इसका मतलब ये कि अगर आपने 10 ग्राम प्रोटीन खाया है तो 10 ग्राम आपके बॉडी को लग जाए, 8 ग्राम खाया तो 8 ग्राम बॉडी को लग जाए। ऐसा ना हो कि आपने 10 ग्राम खाया है 8 ग्राम ही आपके बॉडी को लग रहा है, या फिर 8 ग्राम खाया है सिर्फ 6 ग्राम ही बॉडी को लग रहा है। ये हाई क्वालिटी नहीं है। प्लस जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें क्लीन लेवल की भी बात करते हैं। क्लीन लेवल मतलब ये कि उसमें ना कोई आर्टिफिशियल कलर होना चाहिए, ना प्रिजर्वेटिव होना चाहिए, ना कोई आर्टिफिशियल टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें केमिकली डिराइव्ड हैं। और लॉन्ग रन पे, क्योंकि आपको खाना जो हम प्रोटीन खाते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि आपने आज खा लिया, कल खा लिया, 2 दिन खाया, 4 दिन खाया, बाद में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। ये बॉडी की एवरी डे की नीड होती है। तो इन चीज़ों को आप लॉन्गर पीरियड, मतलब हो सकता है आप लाइफ टाइम खाएं, तो लाइफ टाइम आप स्लो पॉइजन तो नहीं खाओगे। ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल टेस्ट, ये स्लो पॉइजन जो आपके शरीर में काम करते हैं स्लो पॉइजन के रूप में। तो वैसा प्रोटीन नहीं खाना है। हाई क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं जो 100% डाइजेस्टेबल भी हो, उस चीज़ को आपको इनकलकेट करना है बॉडी के अंदर, खाने के अंदर। आपको हेल्दी गट के लिए जो टिप्स हैं, आप ये 4 चीज़ें कर सकते हो। होल ग्रेन, जैसे कि हमने बताया कि आपको कॉम्प्लेक्स फाइबर खाना है रादर देन प्लेन फाइबर, तो सॉरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है रादर देन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। तो होल ग्रेन के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्लांट बेस्ड फूड खाइए, जिससे वजह से आपको नॉनवेज खाने की ज़रूरत नहीं पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइबर मिले आपके बॉडी को, और जिससे जिससे आपके बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो। ओके, फ्रेगमेंटेड फूड को अपने खाने के अंदर आप डालिए, है ना, दिन में एक बार एटलीस्ट। ओके, फ्रेगमेंटेड फूड बेसिकली क्या होता है, इडली हो गया, दही हो गया, है ना, वो कोई भी चीज़ जिसको आप फ्रेगमेंट करके उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज बढ़ा देता है। ड्रिंक्स अवॉइड करें, ड्रिंक्स मतलब पानी नहीं, अल्कोहल वाली चीज़ों को आप अवॉइड करें। तो ये सारी टिप्स हैं जिससे आपकी अनहेल्दी गट हेल्दी में कन्वर्ट हो सकता है। पानी पिए। पानी के ऊपर जैसे जैसे आप ये सेशंस अटेंड करते रहेंगे, आपको एक सेपरेट चैप्टर मिलेगा जिसके ऊपर हम पानी के ऊपर बहुत सारा ज्ञान देते हैं और ज्ञान लिया भी है। पानी आपको कितना पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, ये सारा आपको बताया जाएगा। क्यों पीना है, ओके, क्या सिम्टम्स हैं कि आपके बॉडी को आपको पता चल जाएगा कि अभी मुझे पानी की ज़रूरत है, मैं पानी कम पी रहा हूँ, कैसे पता चलेगा आपको, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ सिखाई जाएंगी। बट बेसिकली ये है कि आप पानी पीते रहें, जिससे आपके बॉडी को हाइड्रेशन मिलता रहे, डिहाइड्रेशन की सिचुएशन ना आए। ये आपको बॉडी से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है। ओके, और जैसे कि मैं बताया था कि इंटेस्टाइनल लाइनिंग, अंदर का बैरियर, इसको भी प्रोटेक्ट करने में काम करता है। क्योंकि अगर पानी नहीं पिया आपने ज़्यादा तो आपका एसिड बढ़ जाएगा लीवर बॉडी के अंदर, और वो एसिड से फिर इंटरनल लाइनिंग को बहुत डैमेज कर सकता है वो एसिड, है ना। तो लेकिन अगर आपने पानी किया तो आपका पीएच बैलेंस बना के रखेगा बॉडी का, और फिर वो सिस्टम को बिगाड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके न्यूट्रिएंट अच्छे से अब्जॉर्ब होंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। फिजिकल एक्सरसाइज में एंगेज करिए ना। इसमें आप ध्यान दीजिए कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से होता क्या है। आप राइट साइड की पिक्चर को देखिए, अगर आप 2 पिक्चर है तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप इंटेंस एक्टिविटी करते हैं, जैसे जैसे आप इंटेंस एक्टिविटी करते हैं, वैसे वैसे आपका एंडोर्फिन लेवल बढ़ता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो बुरे बैक्टीरिया हैं वो सप्रेस होते रहते हैं और आपके अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में सपोर्ट करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड फिर आपके इंटेस्टाइन को एनर्जी देता है, और जिसकी वजह से फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, जिसकी वजह से फिर आपको शरीर में और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और एनर्जी मिलती है, आप अच्छे से काम करते हैं। तो एक्सरसाइज इस तरह से काम करते हैं। ऐसा काम करने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से आपके गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। डाइवर्सिटी मतलब जो मैं आपको बताया 5000 के आसपास जो
स्पीसीज हैं वो अगर नहीं है तो बढ़ने में मदद मिलती है, आपके पॉस्चर बढ़ता है। बिकॉज ऑब्वियसली जब कॉन्फिडेंट ज़्यादा दिखते हो, जब भी आप एक्सरसाइज करके आओ, आप खुद ही देख लोगे कि आपका पॉस्चर बढ़ जाता है, किस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो वो अच्छा हो जाता है, जिससे वजह से आपका वेट भी मैनेज होता है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज किया तो कैलोरी बर्न होता है। और जब आपका पॉस्चर इंक्रीज होगा, आप खुश रहोगे, तो ऑब्वियसली आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा, और जिसकी वजह से फिर आपका मेंटल परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। स्ट्रेस अगर आपके बॉडी में जब ज़्यादा आता है, क्योंकि हमने बताया था कि पेट और दिमाग ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना। कभी पेट दुखता है तो दिमाग नहीं चलता, और दिमाग खराब है तो पेट में मरोड़ आती है। दोनों अपनी बातें सुनी होंगी। जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है, और स्ट्रेस अगर लॉन्गर पीरियड पे रहा, जिसको कि हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, जो बहुत दिनों तक चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, वो होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर के माइक्रोबायोटा को वो कम करते हैं, अच्छे माइक्रोबायोटा को कम करते हैं, तो उसकी स्पीसीज, कई स्पीसीज भी खत्म होने लग जाती हैं। वो जो 5,000 का हमने फिगर बताया वो भी कम होने लगती है। तो लेकिन अगर आपने स्ट्रेस को अगर आपने मेंटेन कंट्रोल कर लिया, तो सीधी बात है, स्पीसीज कम नहीं होंगी, अच्छे बैक्टीरिया कम नहीं होंगे, आप खुश रहोगे तो इनफैक्ट अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे आपके। तो इस तरह से आपने स्ट्रेस से भी आपके अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। एक और चीज़, सुबह सुबह का खाना, जिसको मॉर्निंग न्यूट्रिशन कहते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए? वो इसलिए है क्योंकि रात भर जब हमारी बॉडी रिपेयर होती है, तो उसमें सॉरी सुबह के टाइम पे अच्छे बैक्टीरिया की थोड़ी कमी आ गई होती है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और इसको मॉर्निंग न्यूट्रिशन मतलब सुबह का खाना, जो हेल्दी खाना हम बात करते हैं, न्यूट्रिशियस खाना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सुबह सुबह आपको कौन सी चीज़ें जो मदद करेंगी कि आपके वो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाएं और बैलेंस को इम्प्रूव करें? तो उसमें अगेन 3 चीज़ें हैं। प्रोटीन, जो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए काम आता है गट हेल्थ के, फाइबर और प्रोबायोटिक। ना फाइबर बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा और पढ़ेंगे, बट ये क्या है कि जो आपके अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका खाना है ये, ओके। और प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक बेसिकली वो चीज़ें हैं जो आपके आप अपने अपने शरीर में डायरेक्ट अच्छे बैक्टीरिया डाल रहे हो। तो प्रीबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया का खाना, और प्रोबायोटिक आप अच्छे बैक्टीरिया को डायरेक्ट अपने पेट में डाल रहे हो, ओके। तो ये 3 चीज़ें, प्रोटीन, फाइबर और प्रोबायोटिक, इन 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंस है सुबह सुबह के खाने में, ओके। प्रोटीन किस तरह से मदद करता है? प्रोटीन अगेन जो गट बैरियर है उसको बनाए रखने में मदद करता है ना, क्योंकि प्रोटीन से हर सेल बनता है और उसी के लिए काम आएगा। और अगर वो अच्छा है तो आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छे से रहेगी, ओके। और अगर आपका लाइनिंग अच्छा है तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा नहीं होगा, ओके। और अगर ये सब कुछ ठीक है तो आपके जो खाने की मोबिलिटी है, मतलब खाने का जो पास होने का सिस्टम है, वो एकदम स्मूथली चलता रहेगा और अच्छे से आपका स्टूल पास होगा। और सबसे बड़ी बात, ये बेनिफिशियल गट मेटाबोलाइट्स ये बनाते हैं। जैसे कि आपको बताया कि अच्छे बैक्टीरिया से शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं, और जिससे मेटाबोलाइट्स बन के एनर्जी वापस से आपके इंटेस्टाइन को देते हैं, और फिर अगेन पूरा साइकिल है, और फिर अगेन इंटेस्टाइन अच्छे से काम करके फिर वही अच्छे न्यूट्रिएंट्स वापस से अंदर लेगा और अच्छे से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे के आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज़ पे, जो कि फाइबर है, जो हम अर्ली मॉर्निंग में बात किए थे 3 चीज़ की, प्रोटीन, फाइबर और प्रोबायोटिक। तो अभी हम फाइबर की बात करते हैं। फाइबर बेसिकली 2 टाइप का होता है, और ये आपके बॉडी के लिए काम करता है प्रीबायोटिक का। डाइटरी फाइबर आपके प्रीबायोटिक काम करता है ना। प्रीबायोटिक बेसिकली क्या है? प्रीबायोटिक वो फाइबर है जो डाइजेस्ट नहीं होता, और जब वो डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या होगा, वो अच्छे बैक्टीरिया का खाना बन जाता है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब आप मुंह से लेके नीचे की तरफ जाते हो अपने बॉडी के अंदर, तो आपके बैक्टीरिया की काउंट बढ़ती है,
तो इसका मतलब हो गया कि आखिरी आखिरी पोर्शन में ज़्यादा बैक्टीरिया है, और जब ज़्यादा बैक्टीरिया तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे बैक्टीरिया होने चाहिए। तो जब वहाँ पर ज़्यादा अच्छे बैक्टीरिया तो वहाँ तक खाना पहुँचना चाहिए उनके लिए, तो खाना वहीं पहुँच सकता है उधर जो डाइजेस्ट न हो। ओके, तो जो डाइजेस्ट खाना नहीं हो रहा है वो चीज़, मतलब वो वाला फाइबर जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो उनके लिए खाना बन जाता है। तो ये प्रीबायोटिक का काम करता है। इसके वजह से आपको क्या क्या फ़र्क पड़ता है? अगेन, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अच्छे से होते हैं, आपका माइक्रोबायोम की जो बैलेंस होता है वो बराबर रहता है, अच्छे वाले ज़्यादा, बुरे वाले कम, और जो स्पीसीज हैं, अलग अलग जातियां हैं माइक्रोबायोम्स की, वो मेंटेन रहती हैं। ओके, डाइटरी फाइबर दो टाइप का होता है, एक सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल। सोल्यूबल वो जो पानी में घुल जाता है, आपने कई चीज़ें ऐसे देखी होंगी जो पानी में घुलने के बाद फूल जाती हैं। एक सब्जा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सब्जे का। दूसरा आपने एक और एक चीज़ देखी होगी जिसको बोलते हैं चिया सीड्स, उसको आप पानी में डालिए थोड़ी देर में फूल जाता है। फूलना बेसिकली मतलब क्या है, वो अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो सोल्यूबल वो फाइबर है जो पानी में घुल जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखता है, तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती। तो ये आपके सैटिस्फैक्शन को प्रमोट करता है, मतलब ये है ना। इसका एक जो बहुत बढ़िया काम है वो ये है कि आपने जो भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खा लिया है, आपके बॉडी के अंदर जो भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो भी ज़्यादा शुगर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उसको पकड़ लेता है और बॉडी के बाहर निकाल देता है ना। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको इम्पोर्टेंस समझ जाओगे कि सोल्यूबल फाइबर क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने को और ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। ये किस में मिलता है? खाने में अगर आप देखेंगे तो एप्पल में, बीन्स में, नट्स में, ओट मिल में, है ना, स्वीट पोटैटो में और दालों में मिल जाता है ये आपको। इसी के सामने अगर आप देखा जाए कि इंसोल्यूबल फाइबर ये पानी में घुलता नहीं है, ये आपके स्टूल को बल्कनेस देता है, क्योंकि ये जब घुलेगा ही नहीं, गलेगा ही नहीं, तो ये सीधा अंदर आगे जाएगा, आपका जो स्टूल है उसको बल्की बनाएगा और आपके पेट को अच्छे से साफ करेगा। किन चीज़ों में मिलता है आपको ये? व्हीट में है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल है, किनोवा है, ब्राउन राइस है, या फिर कोई नट्स वगैरह हैं उसके अंदर है। तो इसका मतलब बेसिकली ये आपके बोल मूवमेंट को हेल्दी रखने में मदद करता है, इंसोल्यूबल फाइबर। अब आ जाते हैं हम प्रोबायोटिक पे। प्रोबायोटिक बेसिकली, जैसे कि मैं आपको बताया कि अच्छे बैक्टीरिया ही हैं ये सीधा, और जो हम अपने बॉडी के अंदर डाल देते हैं, तो जिससे अगर आपकी क्वांटिटी कम हुई है या फिर आपके स्पीसीज की काउंट कम हुई है तो वो इंक्रीज हो जाते हैं और अच्छे से फिर अपने आप को अंदर बढ़ाते हैं। फिर इसका फ़ायदा क्या है? ये आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, ये जो बैरियर फंक्शन है ना, इसको इंक्रीज करता है, हार्मोन्स इम्प्रूव करता है, एंजाइम्स इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी इम्प्रूव करता है, उनकी अच्छी क्वांटिटी बनाता है। ये दोनों चीज़ें आपके डाइजेशन के लिए काम आती है और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है और इससे आपके गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी और बढ़ जाती है। तो ये प्रोबायोटिक का फ़ायदा है। अब आ जाते हैं, एक प्रोडक्ट आता है न्यूट्रीलाइट का जिसको बोलते हैं प्री एंड प्रोबायोटिक। तो इसके अंदर एक कैप्सूल है जिसके अंदर प्रीबायोटिक भी है और प्रोबायोटिक भी है। इसकी जो खास बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ये अगर आप सबसे ऊपर आप देखेंगे तो बैसिलस कोगुलान UniIS2 ये लिखा हुआ है ना। बैसिलस कोगुलान बेसिकली क्या है? ये प्रोबायोटिक है जो इस, जो हमने बताया प्रीबायोटिक का जो हमारा प्री और प्रोबायोटिक का जो कैप्सूल है उसके अंदर इसे डाला गया, बैसिलस कोगुलान। क्यों डाला गया इसे? ये अगर आप समझोगे तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगी। होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब माइक्रोबायोम्स जो हम डायरेक्ट बैक्टीरिया को अंदर डाल रहे हैं पेट के अंदर, लाइव बैक्टीरिया, बराबर है। अब कैसा है कि हमारे पेट के अंदर हीट है, एसिड्स हैं और एंजाइम्स हैं, क्योंकि ज़्यादा बैक्टीरिया आपको नीचे चाहिए बॉडी के अंदर, तो वहाँ तक उसने जाना भी चाहिए।
बीच रास्ते में वो एसिड से मर सकते हैं, गर्मी से मर सकते हैं, कुछ एंजाइम उसके उनके साथ रिएक्ट करके उनको मार सकते हैं। तो जितना आपने जो प्रोबायोटिक खाया है वो उतने जिंदा वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ हमें सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। तो बैसिलस कोगुलोन जो है ये दूध से बनता है, दूध को सड़ाते हैं, उसमें से बैक्टीरिया निकालते हैं, उसको इस कैप्सूल के अंदर डाला जाता है जो कि वहाँ तक जाता है, बीच में मरेंगे नहीं। कितनी क्वांटिटी इसके अंदर है 2 बिलियन, 2 बिलियन कॉलोनी। ओके, तो ये इसका एक खासियत है। तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, और इनफैक्ट करना ही चाहिए अगर आप गट रिसेट फेज में हो तो। ओके, इसके फायदे क्या हैं? अगेन फायदे वही हैं जो अब तक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, आपके प्रोटीन और कार्ब्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, बेनिफिशियल वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो है उसको कम करता है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी को बढ़ाता है मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सॉरी। तो अगर आप ध्यान से देखा जाए, जो हम 3 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि आपको सुबह सुबह खाने चाहिए 3 प्रोडक्ट गट रिसेट फेस में, प्रोटीन, फाइबर एंड प्री एंड प्रोबायोटिक, ये तीनों न्यूट्रीलाइट के मिलते हैं और तीनों क्लीन लेवल के साथ हैं। क्लीन लेवल मतलब मैं आपको जैसे बता दिया कि ना इसके अंदर प्रिजर्वेटिव है, ना इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर है, ना आर्टिफिशियल टेस्ट है, और पूरा का पूरा जितना आप खाओगे पूरा का पूरा डाइजेस्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझना? देखो, कई बार हम जब किसी को बोलते हैं कि आप प्रोटीन खाइए या फिर कैल्शियम खाइए रेगुलर, तो कैल्शियम खाने वाले लोग डरते हैं, बोलते हैं कि नहीं, कैल्शियम ज़्यादा खाने से पथरी हो जाती है, स्टोन, है ना, किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन। तो आप उसको इस तरह से समझिए ना कि अगर आपने कोई चीज़ अगर खाई है और अगर सही जगह नहीं जाएगी और सही जगह सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगी तो गलत जगह जाके तो बैठने ही वाली है। एग्जाम्पल मैं आपको अगर इसका दूँ तो अगर आपके घर पे कोई बच्चा है, घर पे बहुत तूफान कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, उसको 2-3 घंटे आप गार्डन ले जाओ, छोड़ दीजिए उसको, बगीचे में खेलने दीजिए अपने नज़रों के सामने। जब 2-3 घंटे बाद वो घर पे रिटर्न आएगा, आपको लगता है उतनी मस्ती करेगा? बिल्कुल नहीं। नहाएगा, धोएगा, हाथ मुँह धोएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा चुपचाप, क्योंकि उसकी एनर्जी को आपने गई सही जगह पे लगा दिया, इसलिए घर पे वो मस्ती नहीं कर रहा। उसी तरह से जब आपने सही चीज़ खा ली जो सही जगह पे जा रही है और सही तरीके से काम कर रही है, तो ऑब्वियसली वो गलत जगह नहीं जाएगी। जब गलत जगह नहीं जाएगी तो गलत काम नहीं करेगी। तो इन प्रोडक्ट के अंदर यही खासियत है, जिस काम के लिए है वो पूरा वो काम करेंगे और वहीं जाके काम करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है खाली कि आपको जब आप इस प्रोग्राम में आते हो तो आपको जो भी खाना खा रहे हो उसका प्लेट आपको शेयर करना होता है, फ़ोटो, ताकि हमें पता चले, जो भी आपका हेल्थ बड़ी है उन्हें पता चले कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, सही खा रहे हो, गलत खा रहे हो, ताकि वो आपको रास्ता बता सकें कि सही तरीके से क्या करना है। यहाँ पर एक खाली एक पिक्चोरियल फॉर्मेट दिया गया, एक फॉर्मेट में दिया गया है कि आपके प्लेट में तकरीबन 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होने चाहिए, 25% आपका जो प्लेट का जो साइज़ है उसमें प्रोटीन वाली चीज़ें होनी चाहिए और 25% कार्ब वाली चीज़ होनी चाहिए। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जो मैं देखता हूँ 10 से 15% फ्रूट वेजिटेबल होता है, 60-70% या 80% भी जा सकते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट होता है और नाम की दाल होती है। वो भी अगर आप महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से नीचे चले गए तो दाल की तो पतली हालत हो जाती है। ओके, तो वो ना करें। आप ये शेयर करते रहेंगे, आपको ऐसा हम कई तरह के रास्ता बताते रहेंगे कि किस क्या क्या न्यूट्रिशियस फूड है। हेल्दी तो आप खाओगे ही खाओगे, ना नहीं है, खा ही रहे होंगे, बट हम उसको न्यूट्रिशियस में कन्वर्ट करें। अब आगे कुछ चीज़ें जो आपको करनी है इस पीरियड में, आपको डाइट रिच फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने हैं। ऐसा खाना खाना है जिसमें आपके डाइट में वेजिटेबल और फ्रूट बढ़े। क्यों? क्योंकि ये आपका प्री एंड प्रोबायोटिक के लिए काम आएगा। ओके, आपको खाने में प्रीबायोटिक ऐड करना है, पानी ढंग से पीना है, ढंग से इन द सेंस जितना चाहिए उतना पीना है, जब चाहिए तब पीना है। जब ऐसा नहीं कि बहुत ज़रूरत हो गई, बहुत देर से नहीं पिया, फिर आपने पिया, तब तक अंदर आपका डिहाइड्रेशन डैमेज कर चुका होगा कुछ ना कुछ, है ना। एक्सरसाइज रेगुलर करना है, खाना आपने चबा चबा के खाना है, और इसके ऊपर भी आपको ज्ञान मिलते रहेगा। अगर आप यहाँ पर आते रहोगे तो इसके ऊपर भी आधा चैप्टर है पूरा। ओके, आपके स्ट्रेस को आपने मैनेज करना है। फाइबर रिच फूड खाना है, जैसे कि हमको पता है कि
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना आपने बेसिकली बोलने का मतलब ये है, रिफाइंड नहीं खाना है, नींद अच्छे से लेनी है, और हो सके तो जब तक सूरज उगा है और डूब रहा है उसी के बीच में आप खाना खाएं। एक फ्रेगमेंटेड फूड जैसे दही या इडली या ढोकला, ऐसा कोई फ्रेगमेंटेड फूड एक दिन भर में एक कोई ना कोई डिश हो खाएं। ओके, न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाएं, कार्ब डेंस फूड नहीं। ओके, और प्लांट बेस्ड फूड के ऊपर आप कन्वर्ट हो सकते तो हो जाइए, या फिर उसको ऑप्ट करिए आप। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि अगर आप खाए और डायरेक्ट सो गए, तो आपके खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। ओके, कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए? रिफाइंड शुगर नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, सिगरेट नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है, ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, कॉफ़ी से दूर रहिए। इसके ऊपर भी आपको ज्ञान मिलेगा, कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, है ना, जब आप आते रहोगे तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ना, ये प्रोग्राम वो रील वाला प्रोग्राम नहीं है कि आपने 30 सेकंड का रील देख लिया आपको ज्ञान मिल गया। जी नहीं, ये पूरा पैकेज है। जब तक आप सारी बातें नहीं समझोगे तब तक आपको पूरा, जब तक आप सारी बातें सुनोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं तब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ओके, प्रोसेस फूड को आप कम अवॉइड कर दीजिए, हमने तो बिल्कुल अवॉइड कर दिया है। ओके, कैलोरी डेंस फूड नहीं खाइए, एनिमल बेस्ड फूड अवॉइड करिए जितना हो सकता है, बिल्कुल। ओके, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इसका आपका स्क्रीन टाइम कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसको समझिए, है ना। खाने के टाइम पे ना हो तो अच्छा है, सोने से 1-1.5 घंटे पहले इसको आप स्विच ऑफ करके रख दो तो ज़्यादा अच्छा है ना। डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको जानना है क्यों कैसे, यहाँ पर आते रहिए, आपको पता चलते रहे हमेशा क्यों बोलते हैं। और एक चीज़ जो आपने हमेशा करनी है वो है साइन। साइन मतलब ये कि आपको अपना दिन ग्रैटिट्यूड के साथ शुरुआत करना है, आपने अपना न्यूट्रिशियस फूड खाना है, अपने आपके इंटेंशन और गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आपने क्या पाना है लाइफ में। हेल्थ के बिहाफ पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, उसके लिए कोई नई चीज़, कोई ना कोई नई चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, तो रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज डेली करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। रुचिता, ओवर टू यू। Thank you so much, Manoj. Thank you so much for explaining that so wonderfully. I think सबको clear हो गया है कि we need to take care of a gut in order for healthy functioning. With that, guys, we come to an end of this session. Next session, we'd be discussing fats and carbs. Until then, good night, stay safe. See you in the next session.